Good morning, everyone. I welcome you all in this video lecture series for the design of steel structure. In this video lecture series, we'll be continuing our lecture 5 and we will discuss about the design philosophies. In this lecture, we will focus on following. First, we will be talking about basis of for design. Then we will focus on various design philosophies, that is WSM, ULM and LSM. One by one, we'll look at each on each. But going to on that, first we will be completing this left out portion from our last lecture, the load combination. Before going to load combination, that is the combination of different loads, we must understand what kind of a different load a structure may be subjected to. Okay, a structure, depending upon what kind of a structure it is and where it is being placed, it may be subjected to various kind of loads. For example, if a structure, for example, there's an industrial building is situated in a densely populated area, it may be subjected to only dead load only and some imposed load only, because since it is a heavily populated area, so there will be so many buildings around that particular industrial building, and because of that there will not be a major portion of wind acting on that particular structure. And depending upon what zone that building is lying, the earthquake load we will consider. Okay, there are some zones which have been divided in India has been divided in some zones, and on the basis of those zone we determine that the severity of that structure, or the how prone that structure for that earthquake load. Okay, so on the basis of this, we consider what kind of load will be acting on that structure. First, we will look at the first combination which is given here is the dead load and the imposed load. For example, as I have given you an example of an industrial building subjected to in a highly populated area, we can see that there will be only dead load and the imposed load will be acting on that. Okay. Or another example, for example, there is a small residential building in a populated area. There is not much wind load are there. There's also, because of the earthquake zone, there's not much earthquake load also on that. So that kind of a structure will be subjected to dead load and imposed load. If we talk about the another combination, that is dead load and imposed load, or plus wind load or earthquake load. Okay, wind load or earthquake load. Why we are focusing on wind load and earthquake load rather than, sorry, wind load or earthquake load rather than wind load and earthquake load? Because, for example, there's a building situated in a remote area. Okay, in a severe earthquake zone also. Okay, since in a remote area there may be a possibility of good wind load acting on it, and since it is a earthquake prone area, we are assuming that this structure is situated in an earthquake prone area, so there may be some earthquake forces may be subjected on it when the earthquake come. Okay, also, since it is a structure, then there will be definitely some dead load of it, and it may be used or occupied some of the occupants, so it will be subjected to some imposed load as well. Okay, so because of this, there will be all four kind of loading will be acting on it. But what are the prones and what are the percentage, or what will be the probability of this earthquake load and this wind load in their severe combination will act together at a particular time? हाँ, अगर हम देखें इसको इस तरीके से कि जो हमारी बिल्डिंग है उसके ऊपर कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अर्थक्वेक लोड एज वेल एज विंड लोड एक ही टाइम पे आ रहा है, इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम हमेशा विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को लेते हैं, दोनों को एक साथ नहीं लेते, है ना।
इन द थर्ड कॉम्बिनेशन वी कैन ऑल्सो सी दैट विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों को एक साथ नहीं लिया गया है ना। अब कैसे कौन सा लोड हम करेंगे, कौन सा व्हाट विल बी आर डिजाइन लोड। हाँ, फर्स्ट विल गो विद डेड लोड, इम्पोज लोड प्लस विंड लोड, और फिर हम देखेंगे कि डेड लोड, इम्पोज लोड और अर्थक्वेक लोड, इन दोनों में से ही जो भी कॉम्बिनेशन हमारा ज़्यादा डिज़ाइन लोड की वैल्यू दे रहा होगा उसको हम कंसीडर करेंगे हमारे बिल्डिंग के डिज़ाइन के लिए। ओके, तो इस तरीके से, क्योंकि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि एक ही टाइम पे हमारा डेड लोड, एक ही टाइम पे हमारा अर्थक्वेक भी आ जाए, एक उसी टाइम पे ही हमारा सीवियर कंडीशन में विंड भी आ जाए, विंड लोड भी आ जाए, है ना। तो इसकी वजह से हम लोग विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को दोनों को अलग अलग लेते हैं, एक साथ नहीं लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेड लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रिप्लेस इट विद some industrial building. So in that industrial building there will not be some imposed load, okay, it may be subjected to dead load only. Okay, for example, there's a shed, okay, or a storage house, okay, in such places there will not be significant imposed load, okay, or there will not be any imposed load, okay. So in such cases we go for the dead load and the wind load or earthquake load combination. For let us see another third our last combination, that is dead load plus erection load. It may be subjected to such building where the possibility of wind load or earthquake load is very less, and it may be subjected to some kind of a erection load. Okay, so हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके की बिल्डिंग है और उस पर किस तरीके के लोड कॉम्बिनेशंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे IS कोड 800/2007 ने क्लॉज नंबर 3.5 में फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस हमें प्रेजेंट किए, और इन्हीं डिफरेंट लोड्स को हम कंबाइन करते हैं, देखते हैं कि कौन सा मोस्ट सीवियर कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे बिल्डिंग के डिज़ाइन के लिए, और उसी को हम लोग एज डिज़ाइन लोड लेते हैं, ठीक है। तो होपफुली लोड कॉम्बिनेशन हमारा अभी क्लियर है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेसिस फॉर डिज़ाइन। Basis for design indicates that what is the base for design। हमारे दिमाग में क्या रहता है जब कभी भी हम कोई बिल्डिंग को डिज़ाइन करने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए जब भी हम किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने जाएं कि वो बिल्डिंग हमारी स्टेबल रहे, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, है ना। वो रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या क्या रहेंगी, जैसे कि बिल्डिंग जो भी हम बनाएं दैट शुड बी स्टेबल, दैट शुड नॉट बी मूव, है, दैट शुड नॉट मूव। ओके, कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर, है ना, कोई लोड आया, अब ये मान लो कि अपनी जगह से ही आगे बढ़ गई, तो इट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर शुड बी स्टेबल एंड रोबस्ट। ओके, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, ड्यूरेबल एंड रिलायबल। मतलब वी कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग एंड इट्स सपोज टू बी सर्व अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। ओके, अब कभी भी किसी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की लाइफ 5 साल 2 साल ऐसे तो नहीं होती, है ना। हमेशा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की लाइफ 50 साल 100 साल 150 साल इस तरीके से होती है। तो इन 150 साल के पीरियड में, इस 100 साल के पीरियड में बिल्डिंग हमारी ड्यूरेबल रहे, है ना, 100 साल तक वो अपना पूरा जो भी उसका पर्पस है वो सर्व कर पाए, है ना, कोई भी कोलैप्स ना हो, कोई भी उसके अंदर डैमेज ना हो, है ना। तो इट शुड बी ड्यूरेबल एज वेल एज रिलायबल। रिलायबल का क्या सेंस है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि ये बिल्डिंग के अंदर कोई भी डैमेज नहीं होगा, है ना, हम उसके ऊपर भरोसा कर पा रहे हैं, है ना। तो इन दैट सेंस इट शुड बी रिलायबल। तो जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं, आर टारगेट विल बी दैट द डिजाइंड स्ट्रक्चर शुड बी ड्यूरेबल एज वेल एज रिलायबल। अब बात करते हैं अगले की, एडिक्वेट रेजिस्टेंस अगेंस्ट मिसयूज एंड फायर। वी कैन सी इन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स द ऑक्यूपेंट्स डू नॉट follow certain rules. Okay, there may be some mishappening. Okay, for example, there may be some fire event. Okay, so in such cases the building must not lose its performance। मतलब बिल्डिंग को जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग को मान लो कोई थिएटर है, उसके ऊपर एक छत है ना, देयर इज अ बिग थिएटर एंड पीपल आर सिटिंग ओवर हियर। हाँ, अब इसके अंदर अगर कुछ फायर का इवेंट हो जाता है तो हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसका छत ऐसे सैग कर जाए, है ना, गर्मी की वजह से। तो इसकी वजह से हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो जिस उसके अंदर अगर कुछ मिसयूज़ हो रहा है या कोई ऐसे फायर के इवेंट हो रहे हैं या कुछ भी हैपनिंग हो रही है, तो उसके अंदर भी वो एडिक्वेट रेजिस्टेंस शो कर सके,
ठीक है। अब बात करते हैं अगले की परफॉर्मेंस अंडर एक्सीडेंटल इवेंट्स। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बिल्डिंग एंड कोई कार आती है और इसको यहाँ पे हिट कर देती है। अब कोई कार आकर के यहाँ पे हिट करेगी और ये कॉलम इस तरीके से अगर डैमेज हो जाता है तो बिल्डिंग हमारी कोलैप्स कर सकती है एंड वी वुड नॉट वांट कि हमारी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के हम लोग थॉट लेकर के चलते हैं जब भी हम किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करें। ओवरऑल अगर इन सभी थॉट को एक कंबाइंड फॉर्म में देखें, है ना, तो हमारी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ या एबिलिटी टू रेजिस्ट लोड, है ना, हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन लोड्स एंड इफेक्ट्स सब्जेक्टेड टू ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ। बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा ही ज़्यादा होनी चाहिए, जो भी उसके ऊपर इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी उसके ऊपर लोड्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, ये हमारा एक बेसिक सिद्धांत रहता है जब भी हम किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन के लिए जाते हैं कि उसके ऊपर आने वाले लोड्स हमेशा कम रहें उसकी स्ट्रेंथ से, या दूसरे शब्दों में बोलें उसकी जो स्ट्रेंथ है हमेशा ही ज़्यादा रहनी चाहिए उसके ऊपर आने वाले लोड्स से। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक थॉट जो कि हम फॉलो करते हैं किसी भी बिल्डिंग के डिज़ाइन को करते समय। अब इन जनरल अगर हम देखें किसी भी बिल्डिंग की डिज़ाइन के लिए, है ना, अगर हम ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं तो दैट बिल्डिंग विल बी सेफ, है ना। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी बिल्डिंग हमने डिज़ाइन करी है तो उस बिल्डिंग में कोई भी हैप्पैज़ार्ड हो जाए, कोई भी ह्यूमन लाइफ कॉज हो जाए, ठीक, डेंजर में आ जाए। तो उसके लिए सेफ्टी हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य, आर बिगेस्ट एम विल बी सेफ्टी। कोई भी हम बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, सेफ्टी हमारा बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। सेफ्टी से हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग इज़ द सर्विसिबिलिटी। अब कोई बिल्डिंग हमने बनाई है, हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर लोग रहें। फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल बिल्डिंग वी हैव डिजाइंड। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लोग तभी रहेंगे अगर वो कंफर्टेबल फील कर पाएंगे उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग को। कैसे कंफर्टेबल फील कर पाएंगे? उसकी सेफ्टी को लेकर के उनके अंदर मन में कोई भी थॉट नहीं डेवलप होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी बिल्डिंग को अगर हम मान लेते हैं ये हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं ये हमारी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी जिसके अंदर ऑक्यूपेंट्स रहते थे, है ना। अब समय के साथ जब हमने बिल्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ाई तो कुछ समय के बाद इसकी स्लैब में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाता है। अब अगर ये डिफ्लेक्शन एक सर्टेन लिमिट से कम रहता है तो हम ये जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि कोई खास डिफ्लेक्शन आया। अब अगर ये डिफ्लेक्शन एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा चला जाता है तो ये ऑक्यूपेंट्स जो हैं बिल्डिंग के वो इस डिफ्लेक्शन को आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे और फिर वो इस बिल्डिंग के अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे। दे विल नॉट बी एबल टू स्टे और यूज दैट बिल्डिंग एनी। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग जिस तरीके से जिस पर्पस के लिए हमने बनाई थी वो अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अब सर्विसेबल नहीं रही है। भले ही ये बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करेगी, सेफ है अभी भी हम समझ रहे हैं पूरी तरीके से, बट ये अब अपने पर्पस को सर्व नहीं कर पाएगी। तो अब इसकी जो सर्विसिबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो बिल्डिंग अब हमारे किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो हमेशा हमें फोकस ये भी करना चाहिए सेफ्टी के बाद जो हमारी अगली प्रायोरिटी रहेगी कि बिल्डिंग अपना जिस पर्टिकुलर जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए हमने डिज़ाइन किया है दैट शुड बी डन। ओके, तो बिल्डिंग शुड बी सर्विसेबल। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमी। whenever we design any building we also focus on the economy. Okay, economy is very important part. अच्छा डिज़ाइनर, अच्छा बिल्डिंग डिज़ाइनर वही होता है जो कि स्ट्रक्चर को कम से कम कीमत में डिज़ाइन कर सके। अब मान लो कि आपने ये पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाई है, अब इसमें ज़रूरत से कहीं ज़्यादा आप डायमेंशन के कॉलम लगा देते हैं, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा डायमेंशन की आप बीम लगा दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बी सेफ, इट विल बी सर्विसेबल फॉर द एंटायर लाइफ, बट विल इट बी इकोनॉमिकल? इट विल नॉट। ओके, तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कहीं पे सोर्सेस आप लगा दे रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बन जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब भी हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो हमारा होल सोल मोटो ये रहता है कि बिल्डिंग हमारी सेफ रहे, अपना अपनी सर्विस दे सके जो भी उसकी इंटरनल लाइफ है, और कम से कम दाम में, कम से कम कीमत में, कम से कम इकोनॉमी में हम उसको बना सकें। ओके, सो दिस इज द इन जनरल थॉट वी हैव व्हेनेवर वी डिज़ाइन एनी स्ट्रक्चर और बिल्डिंग। अब कैसे हम बिल्डिंग को अगर इकोनॉमिकल बना रहे हैं तो बिल्डिंग इकोनॉमिकल कैसे होगी? कम से कम उसमें हम मटेरियल लगाएं। मटेरियल कम से कम लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि जो हमने ये कॉलम बनाए थे, ये डायमेंशंस दी थी, है ना, इसकी कम से कम डायमेंशंस है। डायमेंशंस कम से कम आएंगी यानी कि ये मटेरियल हमारा लाइट रहे।
तो ये मटेरियल हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हाउ वी आर यूटिलाइजिंग आवर मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव प्रपोज्ड 3 डिज़ाइन फिलॉसफीज़। किस तरीके से हम अपने मटेरियल को किस लेवल पे ले जाकर के यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, इसके बेसिस पे 3 डिज़ाइन फिलॉसफीज़ हमें देखने को मिलती हैं। पहली मिलती है इलास्टिक और वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा मिलता है प्लास्टिक और अल्टीमेट लोड मेथड, तीसरा हमें मिलता है लिमिट स्टेट मेथड और एलएसएम। ये शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यूएसएम, यूएलएम एंड एलएसएम। ओके, एक-एक करके देखते हैं कि इलास्टिक मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या रहता है, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड क्या रहता है। बात करते हैं इलास्टिक और वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। वर्किंग स्ट्रेस मेथड एज इट्स नेम इंडिकेट्स दैट इट डील्स विद द वर्किंग स्ट्रेस। व्हाट इज द वर्किंग स्ट्रेस? वर्किंग स्ट्रेस वो स्ट्रेस रहेगा जो कि हमारी बिल्डिंग पे नॉर्मल डे टू डे रूटीन में आ रहा है ना। उस स्ट्रेस को अगर हम कंसीडर कर करके चल रहे हैं, है ना, तो उसके हिसाब से अगर हम बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से जाएगी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल डिज़ाइन मेथड, सबसे पुराना मेथड है ये। इसको इलास्टिक मेथड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एज्यूम करके ये चलता है कि हमारा मटेरियल जो रहेगा वो हमेशा इलास्टिक रहेगा, ठीक है, दैट इज हुक्स लॉ फॉलो करेगा। बेसिक एजम्पशन है कि हमारा मटेरियल लीनियरली बिहेव करेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन का बिहेवियर लीनियर रहेगा और इसकी वजह से इसको डिज़ाइन करना, इसके थ्रू बिल्डिंग को डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, द बेसिस ऑफ दिस मेथड इज दैट द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर नॉट एक्सीडेड एनीवेयर इन द स्ट्रक्चर when it's subjected to the worst combination of the working loads. Worst combination of the working loads and permissible stresses should not exceed it. वही बात है कि permissible stresses should not be permissible stresses should not be exceeded than the worst combination of the working loads. वही कि हमारा डिज़ाइन जो स्ट्रेंथ है वो आने वाले एक्शन से, आने वाले लोड से हमेशा कम रहे। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है permissible stresses. What is permissible stresses? परमिसिबल स्ट्रेसेस इज डिफाइंड एज यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ किया जाता है और वो ये बताता है कि हम अपने मटेरियल को कितने टाइम्स कम आंक रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का बना रखा है और ये हमारा सिग्मा वाई है, दैट इज यील्ड स्ट्रेस। अगर हम इसको एक सर्टेन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो दैट सर्टेन फैक्टर विल बी आर परमिसिबल स्ट्रेस। और अगर हम मान लो कि सिग्मा वाई को 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो ये सिग्मा वाई बाय 2 हो जाएगा। दिस विल बी आर परमिसिबल स्ट्रेस। तो अगर हमारा परमिसिबल स्ट्रेस कभी भी वर्स्ट कॉम्बिनेशन से एक्सीड नहीं कर रहा, वर्स्ट कॉम्बिनेशन जब भी आ रहा है तब भी हमारा जो मटेरियल है परमिसिबल स्ट्रेस के ऊपर नहीं जा रहा है, हाँ, तो हमारा स्ट्रक्चर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक थॉट रहता है हमारे वर्किंग स्ट्रेस मेथड को लेकर के। अब इसके चलते हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि हमने हुक्स लॉ को फॉलो किया है, इसलिए जो हमारे एडवांटेजेस रहेंगे इस मेथड के, दैट विल बी कि ये मेथड हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा, रिलायबल रहेगा, क्योंकि हमने मटेरियल को इस पर्टिकुलर स्टेट से ऊपर ज़्यादा जाने ही नहीं दिया है। हमारे मटेरियल में जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो इसके ऊपर गई नहीं है। अब हमारा मटेरियल हकीकत में फेल तो इस स्ट्रेस पे होगा, एफ वाले पॉइंट पे आकर के फेल होगा, बट हमने इसके ऊपर ज़्यादा ही स्ट्रेस जाने ही नहीं दिया। जब इसके ऊपर कभी स्ट्रेस गया ही नहीं है तो हमारा मटेरियल कभी फेल नहीं होगा, और हमारा मटेरियल कभी फेल नहीं होगा तो हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं अपने डिज़ाइन स्ट्रक्चर के ऊपर। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? आप कोई बीम लेकर के आएगा, वो 100 किलो न्यूटन लोड लेगी, तब जाकर के वो एफ पॉइंट पे पहुंचेगी, और क्योंकि आपने उसको इस स्ट्रेस तक रोक दिया है तो आप उसके ऊपर कभी भी 20 किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड लगाएंगे ही नहीं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 100 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन। तो जब 20 किलो न्यूटन के ऊपर आप कभी लोड नहीं लगा रहे हैं तो मटेरियल की स्ट्रेंथ आप 100 किलो न्यूटन है, तो मटेरियल आप क्या कर रहे हो, उसको कम आंक करके चल रहे हो, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द मटेरियल स्ट्रेंथ। और इसके चलते क्या होता है, आपका जो मटेरियल होता है या जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइनली उसकी डिज़ाइन बहुत ही अनइकोनॉमिकल होती है। ओके, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमेशा क्या करता है, जो भी आपकी यील्ड स्ट्रेंथ रहती है उसको कम लेकर के चलता है और इसी स्ट्रेंथ को मानता है कि इसके ऊपर अगर चला गया हमारा स्ट्रेस तो हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक हम अपने इसको रखते हैं और फिर उसके बाद आगे डिज़ाइन करते हैं। इसके ऊपर हम कभी भी नहीं मानते हैं कि हमारा मटेरियल जा रहा है। ओके, तो इसके चलते ये फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अगले मेथड की, दैट इज अल्टीमेट लोड मेथड। तो लोड मेथड क्या करता है? अल्टीमेट लोड मेथड हमारी जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कमी थी कि हम मटेरियल को
केवल और केवल यहीं तक यूज़ कर रहे थे, यहाँ तक यूज़ नहीं कर रहे थे या यहाँ तक यूज़ नहीं कर रहे थे, उसको दूर करता है। ये इस मेथड में हम अपने मटेरियल को अल्टीमेट लोड तक लेकर के जाते हैं। अल्टीमेट लोड तक हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वैल्यू अगर 410 किलो न्यूटन है पर मीटर स्क्वायर, है ना? तो हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा मटेरियल 410 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक जाएगा और फिर जाकर के फेल होगा। दैट इज़ द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। तो इसमें हम अपने मटेरियल को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डिज़ाइन होता है वो हाईली इकोनॉमिकल होता है। एज़ वेल एज़ जब हमारा मटेरियल, अच्छा इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में गए थे, तो हमारा जो इस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आ रहा था, है ना? वो बहुत कम आ रहा था। बट क्योंकि हम अल्टीमेट लोड मेथड में इस वाले स्ट्रेस तक जाते हैं और इस वाले स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है ना? मतलब मान लो कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई पर्टिकुलर रॉड है, अगर आप इसको डब्ल्यूएसएम के हिसाब से डील करेंगे तो इसमें जो स्ट्रेन आएगा वो बहुत ही कम आएगा। और अगर आप इसको अल्टीमेट लोड मेथड के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो इसमें जो स्ट्रेन आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। अब स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आएगा तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आएगा, है ना? डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आएगा तो ये बिल्डिंग सर्विसेबल नहीं रह जाएगी। तो एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है अल्टीमेट लोड मेथड के साथ कि इसके द्वारा डिज़ाइन किए गए स्ट्रक्चर कभी भी सर्विसेबल नहीं रह पाते हैं, है ना? तो ये सर्विसिबिलिटी नहीं सेटिस्फाई कर पाता है, इसकी वजह से अल्टीमेट लोड मेथड को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कोलैप्स लोड का, है ना? जैसे वहाँ पे हम लोगों ने वर्किंग लोड को देखा था, यहाँ पे हम कोलैप्स लोड को देखते हैं। कोलैप्स लोड क्या होता है? कोलैप्स लोड वर्किंग लोड इनटू लोड फैक्टर होता है ना? इसीलिए इसको लोड फैक्टर मेथड भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? और ये मेथड हमारा फोकस करता है रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये जो स्ट्रेंथ हमने अपनी छोड़ दी थी, इसी को स्ट्रेंथ को हम रिजर्व स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है? तो दिस इज वेरी मच अबाउट द अल्टीमेट लोड मेथड। अब बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड की। लिमिट स्टेट मेथड को हम बहुत ही डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट हमें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं, है ना? आगे हमें अगले 1-2 लेक्चर्स के बाद इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है ना? अभी बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। यहाँ पे जब हम सर्विसिबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कोई हमारा स्ट्रक्चर है वो सर्विसिबल ना रहे, ठीक है? तो जब हम सर्विसिबिलिटी की बात करेंगे तब हम सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस को देखेंगे, और जब हम कोलैप्स की बात करेंगे तब हम अपने अल्टीमेट लोड को देखेंगे, है ना? जब अभी हम जितनी भी डिज़ाइनिंग करेंगे आगे जा कर के यूनिट 4 2 3 4 5 में जो भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे, है ना? वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से अल्टीमेट लोड मेथड कोलैप्स के दौरान अल्टीमेट लोड को डील करता है और सर्विसिबिलिटी के दौरान सिग्मा वाई या यील्ड लोड को लेता है, ठीक है? तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मेथड। इसके चलते क्या रहता है, इसमें हमारा जो मटीरियल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ होता है, सर्विसिबिलिटी भी मैनेज हो पाती है। तो इसके चलते, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है, इकोनॉमिकल भी बना रहा है हमारे स्ट्रक्चर को, एज़ वेल एज़ सेफ भी बना रहा है, सर्विसिबल भी बना रहा है। इसके चलते हम ये मेथड जो है वो वाइडली यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? IS 800 हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन करता है कि हम इस मेथड को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करें, बट WSM को क्योंकि WSM बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड मटेरियल है, बहुत हमेशा से उसको यूज़ किया जा रहा है, तो WSM को भी हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें इशू लगता है कि हम LSM को यूज़ नहीं करते हैं, और वेयर वी डू नॉट फील फाइंड अस कॉन्फिडेंट टू यूज़ द LSM, वेयर देयर वी गो फॉर द WSM, ओके? यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन करी जाती हैं, एक डिज़ाइन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल क्या होता है, जब हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को एक सर्टेन डिग्री से कम कर देते हैं, है ना? तो उसके लिए हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल को यूज़ करते हैं, और लोड को जब हम एक सर्टेन डिग्री से बढ़ा देते हैं तो उसके लिए हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड की यूज़ करते हैं। इसको हम और भी डिटेल में धीरे-धीरे देखते हुए चलेंगे, ठीक है? एक टेबल दे रखी है हमें IS कोड में हमारे, है ना? टेबल नंबर 4, इन दैट टेबल वी हैव बीन गिवन कि कौन-कौन से हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स यूज़ करें, है ना? डिपेंडिंग अपॉन कॉम्बिनेशन, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड का अगर कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपने डेड लोड और लाइव लोड में। सिमिलरली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हमें डिफरेंट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड्स दे रखे हैं। इसी तरीके से इस टेबल को भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, जैसे-जैसे हम न्यूमेरिकल लगाते रहेंगे, है ना? और वहाँ पर हम इसका
बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे भी हम इसको देखेंगे। अब बात करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। तो मटेरियल की स्ट्रेंथ को किस तरीके से हमें कम आंकना है, ठीक है? तो वहाँ पर हम इन फैक्टर्स को यूज़ करते हैं और हमें पता चल जाता है कि कितना हमें मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम करना है, ठीक है? हम टाइम टू टाइम इसका यूज़ करेंगे, तो वी वुड गेट मोर क्लियरिटी हाउ टू यूज़ दीज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल। ओके, सो the acceptable limit for the safety and the serviceability requirement before occurs is called the limit state. Limit state इससे हमें clear होता है कि what is the sense of the basic limit state. Covers the shortcoming of the working stress and the plastic design method. Okay. Suggest. Okay. सारे पॉइंट कवर हो गए। ओके, आगे हम लोग अपने लिमिट स्टेट मेथड को और भी अच्छी तरीके से देखेंगे। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स को हम लोग यूज़ करेंगे अच्छी तरीके से, तो इन पे और भी क्लियरिटी हमें आगे मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डेड लोड का कॉम्बिनेशन करते हैं, किस तरीके से विंड लोड कैलकुलेट करते हैं, और वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स की कैलकुलेशन को भी कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।